بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی، اس کا لفظ فرماتا ہے حیا نہیں کرتا، آر محسوس نہیں کرتا، آر محسوس نہیں کرتا کہ اللہ تعالی آر محسوس نہیں کرتے اس بات کی، کس بات کی؟ ان یضربا کے بیان کریں، ان یضربا کے بیان کریں، مثلا مثال کے طور پر، مثال کے طور پر ما بعوضۃ، اس چیز کو جو مچھر ہے، اس چیز کو جو مچھر ہے، مچھر کو مثال کے طور پر بیان کر دے، فما فوقہا، یا اس چیز کو، فما فا، یا اس چیز کو، ما اس چیز کو، فوقہا جو اس سے بھی کم درجے کی، یعنی اس سے اوپر درجے کی، مطلب ہے کہ اس سے بھی نیچے، اس سے مچھر سے بھی اوپر کوئی اور بات ہو، مچھر سے اوپر کا مطلب ہے کہ مچھر سے بھی کوئی اور چھوٹی مخلوق، کوئی اور چھوٹی، تو فما فوقہا جو اس سے بھی اوپر کے درجے، فوق مانا ہوتا ہے اوپر، ہا اس سے، جو اس سے اوپر کے درجے کی ہو، فاما الذین، اما کا مانا بہرحال، اما کا مانا بہرحال، بہرحال وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، فیعلمون تو وہ جان لیں گے، وہ یعلمون علم رکھیں گے، جان لیں گے، انہ الحق بے شک یہ جو ہے برحق ہے، من ربہم ان کے پروردگار کی طرف سے، ایمان والے لوگ جان لیں گے کہ یہ جو مثال ہے یہ برحق ہے اس کے پروردگار کی طرف سے، واما الذین کفروا، بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فیقولون بس وہ کہیں گے، یقولون کہیں گے، ماذا کیا، ماذا کیا، سوال یہ ہے کیا، اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا ہے، کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، یضل بہ، یضل کا معنی گمراہ ہوں گے، بہ اس مثال کے ذریعے، کثیرہ بہت سارے، یعنی اس سے کہ بہت سارے لوگ کیا ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ویاتی بہ کثیرہ اور بہت سارے لوگ ہدایت حاصل کریں گے، وما یضل بہ اور نہیں گمراہ ہوں گے اس سے مگر وہ لوگ جو فاسق ہیں، جو گناہگار ہیں، نافرمان ہیں، نافرمان لوگ کون ہیں؟ الذین وہ لوگ ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، ینقضون جو توڑتے ہیں، عہد کو، وعدے کو، عہد اللہ اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے، میثاقہ پختہ کرنے کے، وہ تشریح میں آ جائے گا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، وَيَقْطَعُونَ کا معنی بھی توڑتے ہیں، تو یہاں مختلف عربی کے، ہمارے پاس تو توڑنا ہر چیز کو توڑنا، دیوار کو بھی توڑنا، وعدے کو بھی توڑنا، تو ہر چیز میں ایک توڑنا ہے، سب میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں ایسے نہیں ہے، اگر کوئی حصی چیز کو توڑنا ہے تو اس کے لیے اور ہے، اگر کوئی کلام کو توڑنا ہے تو اس کو اور ہے، ہر ایک معنی کے لیے الگ الگ مفہوم ہے، جیسے عہد کو توڑنا ہے اس کے لیے ینقضون آیا ہے، اور رشتہ داروں کو توڑنا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطع تعلق، یقطعون رشتہ داری کو، ان کو توڑنا، اگر کوئی ہڈی توڑنا ہے اس کو کسر کہتے ہیں، یکسرون، تو مختلف الفاظ ہیں ان کے توڑنے کے معنی میں، تو ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے اردو میں، ایک ہی توڑنا ہے، ہم کہتے ہیں دیوار بھی توڑی، وعدہ بھی توڑا، رشتہ داری بھی توڑی، ہر ایک میں توڑنا ہے، تو عربی میں الگ الگ الفاظ دیکھیں گے کہ ایک جو لفظ ہوگا ہم اس کا ایک ہی، وہ جو ہوگا ایک ہی ترجمہ کر رہے ہوں گے، لیکن عربی وسیع ہے، اس میں الفاظ کئی ہیں، تو الذین ینقضون کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو، من بعد ہی میثاقہ بعد اس کے پختہ کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور توڑتے ہیں اس کو، اور توڑتے ہیں ما امر اللہ، ما جس کا امر اللہ حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بِهِ أَن يُوصَلَ کہ اس کو جوڑا جائے، أَن يُوصَلَ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ پیچھے پڑھ لیا، فساد پھیلاتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فی الارض زمین میں، اولئک پیچھے پڑھ لیا، یہی لوگ ہیں، ہم جیسے اولئک ہم المفلحون، تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے؟ اولئک ہم خاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے، خسارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقصان، یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، کیفا کیسے، کیفا کیسے، تکفرون باللہ
तकफुरून पीछे आ गया, इनकार करते हैं। कैसे इनकार करते हैं? बिल्लाही, अल्लाह का। वकुंतुम, हालांकि वो थे, वकुंतुम, हालांकि वो थे, वो यहाँ पर हालिया है, वो और के माने में नहीं। बताया था ना कि एक वो हाल के माने में तो एक वो और के माने में, तो यहाँ वो हालिया होगा। हालांकि वो थे अमवातन, बेजान, मुर्दा। मुर्दा भी क्या होता है? बेजान होता है ना, जिसके अंदर जान नहीं होती उसको क्या कहते हैं? मुर्दा। तो अमात, मर गया, बेजान हो गया। हालांकि वो क्या थे? मुर्दे थे। मुर्दे तो नहीं थे, बेजान थे। क्या थे? बेजान थे, उनके अंदर जान नहीं थी। फअहयाकुम, बस उसने उनको जिंदा किया। हालांकि वो बेजान थे, उसको तुम्हें जिंदा किया। वह सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें वो मौत देगा। सुम्मा युहयीकुम, फिर वो जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ तुम लौट के जाओगे। हुवल्लज़ी, के भाई वही ज़ात है, हुआ वो अल्लज़ी, वही ज़ात है, खलक़ा, पैदा किया, लकुम, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्ज़, मा जो कुछ, फिल अर्ज़, ज़मीन में है, जमीअन, सब का सब, सारे का सारा, हर वो चीज़ जो ज़मीन के अंदर है, सारी चीज़ें, ताकीद के लिए। सुम्मा, फिर मुतवज्जे हुआ, सुम्मा इस्तवा, फिर मुतवज्जे हुआ, इलस्समाई, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, एक आसमान नहीं, आसमानों की तरफ। समा एक को भी कहते हैं, असमा सबको भी, आसमानों की तरफ। सव्वाहुन्ना, यहाँ से इशारा कर दिया कि आसमान एक नहीं, सब आसमानों की तरफ। हुन्ना, हम कहते या हु कहते तो एक आसमान, हुन्ना कह दिया तो क्या कहा? जमा का सीगा लेके आए, तो सारे आसमानों की तरफ। कितने आसमान है? सबआ, सबआ, सबआ का माना सात, असमावात। फिर वो मुतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ, फिर उनको बराबर किया 7 आसमानों में। उनको क्या किया? तकसीम कर दिया, बराबर कर दिया 7 आसमानों में। वह हुआ बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का क्या है? इल्म रखने वाला है। अब देखने, या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने परवरदिगार की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। अल्लज़ी जअलकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, कि वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया और आसमान को छत बनाया, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, और इसके ज़रिए से निकाला फलों को रिज़्क़ के तौर पर, लकुम, तुम्हारे लिए, हमने पहले कर दिया तुम्हारे लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि, और ना बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक, अंदाज़न कोई शरीक, हालांकि तुम जानते हो। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, और अगर तुम शक में हो उसमें, उस चीज़ के बारे में, यानी उस कुरान के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया है, फ़ातू बिसूरतिन मिस्लिही, तो तुम लेकर आओ कोई भी सूरत, कोई एक सूरत उस जैसी। वदउ शुहदाकुम, और तुम पुकारो इस काम के लिए अपने मौजूदीन को, अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगरचे तुम ये काम नहीं कर सकोगे, वलन तफ़अलू, और हरगिज़ नहीं कर पाओगे, फत्तकुन्नार लती, तो अपने आप को बचाओ ऐसी आग से कि जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, जो तैयार की गई है काफिरों के लिए। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए, उन लोगों के लिए जो ईमान लेकर आए, ईमान वाले हैं। वामिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे अमल किए, किस बात की? कि अन्ना लहुम, उनके लिए इस बात की खुशखबरी है कि उनके लिए बागात हैं ऐसे कि जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, और जब कभी उनको फलों में से रिज़्क़ के तौर पर दिए जाएंगे तो क़ालू, तो वो कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, कि ये वही है जो हमें पहले भी रिज़्क़ दिया गया था। वो तो भी या लाया गया उसी से मिलता जुलता। बोलो, इसका क्या मतलब है कि इससे भी पहले रिज़्क़ दिया गया? तो अभी तशरीह में आएगा ना, अभी हम तर्जुमा कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह जब तफसीर में आएंगे फिर पढ़ेंगे। वलहुम फ़ीहा अज़वाज, और उनके लिए बीवियाँ होंगी पाकीज़ा। हम फ़ीहा खालिदून, और हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन, और अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला आर नहीं महसूस करता इस बात की कि वो मिसाल बयान करे मच्छर की सी।
या उससे भी कम दर्जे की मखलूक की। हम अल्लज़ीन आमनु, बहरहाल वो लोग जो ईमान ले आए तो वो जान लेंगे कि बेशक ये बरहक है उनके परवरदिगार की तरफ से। और बहरहाल वो लोग जो काफिर हैं, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किए हैं, वो लोग कहेंगे माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, कि अल्लाह ने इस मिसाल से क्या इरादा किया है, कि बहुत से लोग इससे गुमराह होंगे और बहुत से लोग इससे हिदायत हासिल करेंगे, और नहीं गुमराह होंगे इससे मगर वही लोग जो नाफरमान हैं, फासिक नाफरमान। अल्लज़ीन यनकुज़ून, वो लोग यानी फासिक लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को पुख्ता करने के बाद तोड़ते हैं, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया उसको तोड़ते हैं। युफ़्सिदून फ़िल अर्ज़, और ज़मीन के अंदर फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही वो लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, हालांकि कैसे ये अल्लाह का इनकार करते हैं। व कुंतुम अमवातन, हालांकि ये बेजान थे, बस अल्लाह ने तुम्हें, हालांकि तुम बेजान थे, अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर तुम इसी की तरफ लौट के जाओगे। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया हर वो चीज़ जो ज़मीन के अंदर है। जमीअन, हर वो चीज़, हर सब चीज़ें, तमाम चीज़ें, यूँ भी कर सकते। सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर मुतवज्जे हुआ आसमानों की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उनको बराबर किया 7 आसमानों में। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, कि वो हर चीज़ का इल्म रखता है। तो पिछली आयत के अंदर जो हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने 20 आयत में 3 ग्रोहों का जिक्र किया, 3 ग्रोहों का जिक्र, कि उनमें से एक गिरोह जो है जो कुरान से हिदायत हासिल करेगा, कुरान से हिदायत हासिल करेगा, कुरान को मानेगा। वो कौन सा था? हुदल्लिल मुत्तकीन, ईमान वाले। और दूसरा गिरोह काफिर था, और तीसरा गिरोह मुनाफिक, मुशरिक नहीं, मुनाफिक। तो 20 आयत थी, पहली 4 आयत में किन का जिक्र था? ईमान वालों का, और 2 में काफिरों का, और बाकी 14 में मुनाफिकीन का जिक्र तफसील के साथ आया। अब या अय्युहन्नास में अन्नास अहद के लिए आता है, कहते हैं अहद खारजी के लिए। अन्नास से तमाम लोग हैं, कि ईमान वाले लोगों को है कि तुम इबादत करो। इबादत से मुराद क्या है? कि अल्लाह की इबादत पे कायम रहो, अल्लाह की इबादत पर कायम रहो। ईमान वाले तो अल्लाह को मानते हैं ना, तो इबादत कहते हैं कि अपनी पूरी क़ुव्वत सलाहियत को अल्लाह की फर्मा बरदारी में सर्फ करना। इबादत किसको कहते हैं? अपनी पूरी क़ुव्वत को, सलाहियत को, इस्तिताअत को अल्लाह की फर्मा बरदारी। हर वो काम जो अल्लाह की रज़ा का सबब हो, ये इबादत है। नमाज़ पढ़ना इबादत नहीं है, ज़कात देना इबादत नहीं है, जो काम अल्लाह की रज़ा का सबब बने वो इबादत है। तो इबादत कहते हैं कि अपनी पूरी क़ुव्वत और ताकत को, सलाहियत को अल्लाह की फर्मा बरदारी इख्तियार करना। अल्लाह की फर्मा बरदारी, अल्लाह के रज़ा वाले काम करना क्या है? इबादत है। और अल्लाह के खौफ और अज़मत को पेश नज़र रखकर, सामने रखकर अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहना, अल्लाह की नाफरमानी से दूर रहना, ये इबादत है। तो यहाँ तीनों ग्रोहों को हुक्म है, तीनों को हुक्म है कि ईमान वालों को तो ये हुक्म है कि तुम इबादत करो, यानी इबादत के अंदर पुख्तगी इख्तियार करो, इबादत पर हमेशगी इख्तियार करो। और दूसरा ईमान, काफिरों को क्या हुक्म है? कि इबादत से, कि अल्लाह से के साथ शिरक ना करो, अल्लाह की वहदानियत को मानो, अल्लाह की रुबूबियत को मानो, अल्लाह को परवरदिगार खालिक मालिक मानो।